دریا سندھ میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ میاں والی میں چشمہ بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ 5,82,000 کیوسک کا ریلا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گزرے گا۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اختر مجاز سے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے میاں والی میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تو یہاں پہ دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج جو کچھ دیر پہلے ریلا گزرا ہے جناح براج سے 3,45,000 کیوسک کا ریلا گزرا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چشمہ براج سے جو ریلا گزرنا ہے وہ ہے 5,82,000 کیوسک کا ریلا گزرنا ہے۔ ان ریلوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے 41 موضع جات جو ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں، فصلیں جو ہیں دریا برد ہو گئی ہیں، لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہوئے، اور اس وقت ہم موجود ہیں میاں والی کا نوائی علاقہ ہے وطہ خیل کچا میں۔ یہاں پہ کچھ متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں، ان کا کتنا نقصان ہوا ہے بتائیے گا؟ جی کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا بھائی؟ بھائی بہت نقصان ہوا ہے۔ 2010 میں تو ہمارے مکان شکان گر گئے تھے، دیواریں گر گئی تھی۔ اس بار بھی جب حکومت نے اعلان کیا تو ہم نے سامان لے گئے ہیں، رشتہ داروں کے گھر بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہر سال ہمیں، لہذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کچھ کرے ہمارے لیے، مہربانی کرے ہمارے حال پر۔ جی حکومت مہربانی کرے۔ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا کوئی یہاں پہ حکومتی نمائندہ آیا ہے اتنے کوئی پتہ کرن تو آیا ہے بھی اتنے جب پانی آ گیا شہر دے وچ واڑا ہے، کوئی بندے شندے بھی آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ جی میڈیا لے ود رہے ہیں بالکل ود رہے ہیں بھائی، ریسکیو بڑی امداد کی تھی، کچری پائے دھیان مطلب چوکو شوکو نکالنا، بچے کھٹ کے بھائی نکالنا کھیل مکین ہے، بلکہ مہنگائی بہت ہے، بس گزارا نہیں دینا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو کے نمائندگان اور میڈیا کے نمائندگان یہاں پہ آئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جانپور کے سیلاب متاثرین کی تباہی نے نیندیں اڑا دیں۔ بستی قادر بخش اور برگلیانی سمیت درجنوں بستیاں سیلاب سے تباہ ہو گئیں۔ یار مددگار سیلاب زدگان امداد کے منتظر۔ مزید جانتے ہیں علی ڈرامے سے کہ علی بستی قادر بخش کے متاثرین کے کیا تاثرات ہیں۔ جامپور کے مضافاتی علاقوں میں اب ایک بستی قادر بخش ہے، وہاں پہ ہم موجود ہیں، تو سیلاب کی تباہ کاریاں یہاں بھی بہت زیادہ ہوئیں۔ میرے پیچھے آپ سامان بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کھلی چھت کے نیچے یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ وہ ان کی جمع پونجی تھی گندم، جو کہ گندم ان کے حالات وہ والے نہیں ہے کہ وہ اب کھانے کے لائق رہی۔ اب مزید بھی آپ کو گندم کی دکھاتے ہیں صورتحال، یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ گندم کی صورتحال ہے، کیونکہ رات کو اچانک جب پانی آیا تو اس کے بعد ہر چیز ہر طرف جو افراتفری تھی، تو جو جمع پونجی تھی ان کی کھانے کے لیے گندم، وہ اب بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہاں کے اہل علاقہ وہ بھی موجود ہے۔ اچھا بھائی بتائیے کہ کتنے بجے پانی آپ کی طرف آیا؟ رات کیا صورت پانی ہے اتھاں اسا ستے پہ ہسے تروٹائی سا گھر کنے وستی قادر بخش باغنی دے گھر کنے سب کوئی چیز کڈھا نہیں سی دیتا۔ مال درکنے کڈھن سے جڑا رسے تروڑ گئے او بھی رول گئے۔ ساڈا دانے دا اے حال بنیا لا تھے، ساڈا کھان دے کہیں نہیں، اساں تباہ تھی گیوں، ساڈے گھر گھیر گئے، تباہ تھی گئے، مجھے لوڑ گئے، بستی پوری تباہ ہوئی پڑی۔ ہاں کلونی پوری ساری پوری کلونی تباہ تھی گئی ہے۔ کھٹڑے لوڑ گئے، بسترے لوڑ گئے، گندیاں لوڑ گئے، جیری کچھ ہے ساری لوڑ گئی ہے۔ اچھا سرکار کی طرف سے آپ کو کوئی امداد وغیرہ مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی، امداد وغیرہ کچھ نہیں مل رہی۔ گزار رہے ہیں پھر سب بہت اوکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ والا اتنا جڑا ہے نا ہوں یہ سیالا آ گیا تو باہر کا جگہ بھی کہیں نہیں، کچھ کہیں نہیں، سیالے کی رات کتنے گزرے سو، ہاں سارے کتنے مصیبت بن گئے۔ اللہ مہربانی کرے عوام کوئی نہیں آیا سارے پاسے، وڈا سارے کوئی نہیں آیا۔ اچھا آپ نہیں ہے، سیاسی وغیرہ نہیں ہے، اچھا آپ گزرے تھے آج تک بھی کہیں نہیں ہے سیاسی وغیرہ۔ آپ نے بات سنی کہ کبھی تک کوئی سیاسی نمائندہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دکھ بھری کہانیاں ان کی۔ اچھا بھائی جان آپ بتائیں کہ پانی جب آیا تو آپ کی کوئی چیز بچی ہے؟ کچا کہنے سے بچا، ہر شاہ لوٹ گئے۔ سرکار کی طرف سے کوئی امداد وغیرہ پہنچی ہے ابھی تک آپ کے پاس؟ یہ ٹینٹ وغیرہ تو آپ نے لگائے ہوئے ہیں؟ ٹینٹ دوسرا ملے ہیں، اچھا پورا کالونی ہے، پورا کرونی ہے۔ جی ہاں، اب حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ کچھ ٹینٹ دے کچھ کچھ دے صحیح۔
आप क्या कहना चाहेंगे? कोई राशन खावन पीवन कोई टेंशन वगैरह कुछ देवे ना, वो लेने हैं सब कुछ दे दें, सबसे कुछ अब लुट इनकी गया। अपील ये है कि यहाँ पे टेंट इनको मज़ीद दे दिए जाए, क्योंकि अब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और खाने पीने के हवाले से भी इनको ज़रूरत है। अगर कोई मुखैर हजरात खाना अपना पहुँचा सके, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे कैंप तो लगे हुए हैं, जो मुखैर हजरात हैं NGOs हैं उनकी तरफ से कैंप हमें नज़र आए, लेकिन फिर भी इनकी डिमांड यही है कि लोग इन तक कोई खुराक जो है वो पहुँचाए, क्योंकि अभी तक इनकी बस्तियों में पानी मौजूद है, घर इनके मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। कई जगह तो ऐसी है कि जहाँ पर मकानात बिल्कुल ही मलिया मेट हो गए। तो ये सूरत हाल है बस्ती कादर बख्श की, और इसके साथ जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो यही सूरत हाल है कि तबाहकारियाँ ही सैलाब की हैं। लेकिन अब इनकी आवाज़ बनने के लिए अब ये अपील कर रहे हैं आप सबसे कि इनकी मदद करें, इनको खाना दे दें, इनको कोई रहने की छत दे दें, ताकि आर्जी तौर पर ये अपना कोई वसीला बना के उसमें रहना शुरू। अली आपका आप में अपडेट कर रहे थे, को बताएंगे रुझान में बेघर सैलाब मुतासरीन परेशान। मुतासरीन ने रोही टीम को देखकर शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जान लेते हैं अफजल फरीदी से। जी अफजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाल में सैलाब ने लोगों को बेघर करके सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया है। लोग यहाँ के खुले आसमानों तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। देखा जाए तो किसी को कुछ मिल पाया और किसी को कुछ तक भी ना मिला। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनको अभी तक खैमा तक ना दिया गया है। यहाँ पे उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत अपनी चारपाइयों को सीधा करके उनके ऊपर उनके नीचे छांव बनाकर बैठने पर मजबूर है। यहाँ पे मुतासर शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वो क्या कितना नुकसान थे तो हुकूमत ने कुछ दी है? सर कोई क्या नहीं देता, मेरे वाले को ना से को मिलिया क्या के ना तंबू मिलिया ना राशन मिलिया, असीरा उए दाने साने सारा लोड के असीरा कोई मददगार नहीं है। सरकार को असीरा कोई मदद नहीं कीता जेरा है ना कि नाजायज वाले लोग फायदा चंदे पे जायज वाले को मिलता के नहीं। आप खुद देखते पे बाले को देखो, असा वंजू कितना गरीबी दा आवाज आप लोगों का न्यूज का शुक्रिया अदा करूं, आप हमारी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल खवातीन मौजूद है, बात करें क्या सोमा? अब बस हर चीज लौट गए, सामान लौट गए, हर चीज लौट गए, खाली निकाले ए बग्गे बालन सरे नसूम। हुकूमत को क्या हुकूमत को किसी सको इमदाद कर सको कैसा देवे सको कट ले। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुतासरीन की खवातीन भी हैं, वो भी फरियाद। अफजल फरीदी शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तौंसा शरीफ यूसी नाड़ी के तमाम मौजूआत सैलाब की नजर हो गए। सैलाब से मुतासरा मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। मजीद जान लेते हैं असमत बुजदार से। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। 6.5 लाख क्यूसेक का एक बड़ा रेला इस वक्त जहां से गुजर रहा है, जिसकी वजह से तौंसा शरीफ के बेशतर जो मुवाज़ियात हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। लोग जहां से नकल मकानी करके जा रहे हैं। लोगों से इस हवाले से बात करेंगे कि इंतज़ामिया का या कोई मेंबरान असम्बली इनके पास आया है और अपना घर बार छोड़कर ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कोई रिलीफ कैंप बनाया गया है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। चाचा तुसां सगो ये दसो कि इन टाइम तुहाडे कोल कोई मेंबरान असम्बली आए? नहीं बिल्कुल कोई नहीं, कोई रिलीफ कैंप नहीं, कोई नहीं आया। कितने मुवाज़ियात तुहाडे ज़ेर आब हैं? ज़ेर आब मौजावनी कचाला मीरखर जाड़ा और नाले पूरी यूनियन ई टाइम तबाही की लपेट च। पहले रोद कोई ना लपेट दी थी है, हूँ दरिया लपेट च। इतना कोई नुमाइंदा सारे कोलो एसी साहब क्या यूनियन नाज़म कोई MNA साहब MPA साहब कोई सारे कोलो इतना हाज़री तक नहीं आया। इतना हर चीज़ की कमी है, ना कैंप मिलन कहीं को ना राशन पे मिलते, मवेशी तंगन कोई मवेशी अक्सर निकल गए, मामूली कोई जली भी खड़न तो उनके बावजूद को नहीं। बाकी छोटे बच्चे सब तो अपनी मदद खुद आप निकाल गए। कोई था सरकारी चीज़ कोई किश्ती वगैरह कोई चीज़ इतना मुहैया को नहीं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी है और जहाँ से निकलना मसला है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चे जहाँ से निकाल कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ। अख्तर शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लहिया सावाल के मुकाम पर जिमीदारा बंद टूट गया। सैलाबी पाना मुल्हिका इलाकों में दाखिल हो गया। जिमीदारा बंद टूटने से खोखरवाला में पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी ने शाहवाला और खोखरवाला में ज़राई अराज़ी तबाह कर दी। मुतासरीन का इमदादी कार्रवाइयां करने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं। सैलाबी पानी मुल्हिका इलाकों में दाखिल। जिमीदारा बंद टूटने से
खोखरवाला में पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी ने शाहवाला और खोखरवाला में ज़राई अराज़ी तबाह कर दी। मुतासरीन का इमदादी कार्रवाइयां करने का मुतालबा। खानपुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए दावत इस्लामी का शोबा FGRF के ज़रिए तमाम इमदादी रिलीफ कैंप और फंड जमा करने के मॉडल टाउन में कैंप लगा दिए गए। मजीद जान लेते हैं आमिर सुहेल से। जी आमिर। खानपुर के दरियाई इलाकों में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए दावत इस्लामी की तरफ से खानपुर में इमदादी कैंप लगाया गया है, जहां से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सैलाब मुतासरीन के लिए यहां से राशन दीगर सहूलियात जो हैं उनको दी जा रही हैं। दावत इस्लामी के रुकन हमारे साथ मौजूद हैं, सर बताएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का कैंप इस वक्त मॉडल टाउन दुबई प्लाजे पर लगा हुआ है। फैज़ान मदीना में हमारे इस्लाम भाई मौजूद हैं। आप आएँ, अपना डोनेट करें, आप रकम दें, आप खुश्क राशन दें, पका पकाया खाना दें, पानी की बोतलें ज़रूरत है ज़्यादा, मेडिसन दें आप। तो इंशाल्लाह हम रोज़ाना के बेस पर हमारी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जो इन इलाकों में जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पहुँच कर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इमदाद कर रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, मेडिसन दे रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दें, इस मुसीबत की घड़ी में आप आएँ, दावत इस्लामी के साथ मिलकर हम इन लोगों की खिदमत करें ताकि ये मुसीबत से बच सके। दावत इस्लामी का शोबा है FGRF, इसके तहत ये पूरा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। हमारे इस्लाम भाई उन इलाकों में मौजूद हैं, हम उनसे रहनुमाई लेकर के कहाँ हमें खुराक पहुँचानी है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे थे कि मुसीबत की घड़ी में जो सैलाब मुतासरीन हैं। आमिर सुहेल शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में फ्लड मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। फोर्स को फ्लड एरियाज में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ में फ्लड मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम। DPO की पुलिस फोर्स को फ्लड एरियाज में रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। फ्लड मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम। DPO की पुलिस फोर्स को फ्लड एरियाज में रिपोर्ट करने की हिदायत। SDPOs, SHOs और फील्ड स्टाफ फ्लड एरियाज में मौजूद रहेंगे। सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी। DS रेलवे मुतासरीन डिवीजन हम्माद हुसैन मिर्जा की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया है। सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। सैलाबी सूरत हाल के बाद महंगाई ने भी बुरा हाल कर दिया। सैलाब ज़दगान के लिए खैमों की इमदाद करना भी मुश्किल हो गया। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं, जिसके बायस जो वहाँ के लोग हैं जो सैलाब ज़दगान हैं उनको इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है, खाने पीने की। इसके साथ साथ छत की, खैमों की भी बात करें खैमों की, तो खैमों की कीमतों में भी जो है एक हफ्ते के अंदर इजाफा देखने में जो है वो आया है। बात करते हैं हम दुकानदार से कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजूहत हैं कि इस वक्त इस क्रूशल टाइम में रेट जो है वो बढ़ गए। सर बताइएगा काइंडली कि क्रूशल टाइम है इस वक्त, और इस क्रूशल टाइम के अंदर इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इस कदर रेट्स बढ़ जाना टेंट्स के, जो कि पीछे से बढ़ाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा सा बताइए। मोहतरम, बात यह है कि ये जो मरकज़ है इसका यह है लंडा बाज़ार लाहौर, और लंडा बाज़ार लाहौर में एक है साजा वाला बाज़ार। इस प्लास्टिक शीट के बनाने वाले और कैनवस बनाने वाले, इस प्लास्टिक शीट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं लाहौर में, एक आफिया नूर के नाम से और एक PK के नाम से और एक गोल्डन के नाम से, जिलानी के नाम से वो बना रही हैं। उन्होंने जो रूटीन में वो हमें रूल देते थे 11,000 रुपये का प्लास्टिक का, वो रूल उन्होंने कर दिया 18,000 का, और जो सिल्वर गोल्डन रूल हमें देते थे अपना 16,000 का, वो उन्होंने कर दिया 22,000 का, और जो हमें सफ़ेद रोल देते थे वो उस टाइम उसका रेट था 13,000, वो उन्होंने कर दिया 18,000। अब जिन लोगों के पास स्टॉक थे उन लोगों ने यहाँ पर उस रेट को भी वही रेट बरकरार रखा और उस रेट के ऊपर अपना नफा वही वाला डाल दिया जो 11,000 पे डालना था, 16,000 पे डालना था या 15,000 पे डालना था। असल में इसका मेन जगह है लंडा बाज़ार लाहौर, उधर शेख साहिबान है ज़्यादा इसके काम करने वाले, और उन्होंने ये रेट शदीद बढ़ाए हैं। और कैनवस बनती है कसूर में, और कैनवस कसूर में बनती है, कसूर के लोगों ने कैनवस का रेट बढ़ाया, और मोम चढ़ती है और माया चढ़ती है लाहौर में। अब लोग मोम तो 40 रुपये का चढ़ती है मगर माया 4 रुपये का, अब लोग माया चढ़वा रहे हैं कैनवस के ऊपर और उसी के टेंट छोटे छोटे बना के दे रहे हैं। बिल्कुल जी, एक जानिब रेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब क्वालिटी कम होती जा रही है। आवाम को नहीं पता कि वो जिस दुकान पर इस वक्त आए हैं इमदाद करने के लिए, वहाँ पर उनको वो भी क्वालिटी की चीज़, वही प्रोडक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसलिए भी चेक एंड बैलेंस है वो। इब्राहिम खान शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र मंडियों में सब्जियों की तरसील न होने की वजह से महंगी सब्जियां हो गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं अमजद हुसैन से। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब की वजह से एक तरफ तो जानी और माली नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ जो खेत खलिहान है वो भी तबाह हो चुके हैं। इस वजह से जहानिया में सब्जी के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और दुकानदारों का ये कहना है कि सब्जी रास्ते बंद हैं। और इसके अलावा जो सैलाब की वजह से काफ़ी खेत जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और यही वजह है कि जहाँ सब्जियां के रेट आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर हो चुके हैं, जिसे जो शहरी है वो सब्जियों के रेट सुनकर ही चुप करके घरों को रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार और शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। जी क्या वजह है, सब्जियां क्यों महंगी दी जा रही हैं? सब कुछ सैलाब की वजह से हो रहा है क्योंकि पीछे डैमों में पानी भरा हुआ है इसलिए, और सब्जी आ ही नहीं रही है, शहर में आ रही है। धनिया है वो 400 रुपए किलो बिक रहा है, लीमू है इसी तरीके से 400 रुपए, प्याज है, सब कुछ तबाह हो चुका है ये डैमों की वजह से और बारिशों की वजह से पीछे सैलाब आया हुआ है। तो इसलिए अपील की जा रही है, ये जहानिया मंडी का आप देख लें, हाथ खाली आए खाली जा रहे हैं। जो भिंडी है ये 200 रुपए किलो बिक रही है, ये गोभी जो है वो तकरीबन 250-200 रुपए किलो बिक रही है। इसी तरीके से जो टमाटर है इसका 250-300 रुपए किलो रेट है। तो आवाम जो है खुद परेशान है, मंडी भी परेशान है और पीछे से पानी है इसलिए डैमों में भी पानी है। तो मेरी गुजारिश है इसलिए, क्योंकि ये अरबी 100 रुपए किलो बिक रही है मंडी में, अरबी 100 रुपए। ये सारा कुछ जो है ना ये बारिशों की वजह से है, डैम की वजह से पानी जो है ना भरा हुआ है इसलिए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया है कि सैलाब। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तिया में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मनमानी अरूज पर सब्जियों के निर्खों में होशरुबा इजाफा कर दिया। मजीद जान लेते हैं जाहिद हुसैन से। जी हाँ जी बिल्कुल, महंगाई ने आवाम का जीना दुभर कर दिया है। अगर बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की तो इस वक्त प्याज और टमाटर गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। यही प्याज और टमाटर कुछ रोज़ पहले 50-60 रुपए में किलो मिल जाता था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, मार्केट में किस कदर रेट बढ़ चुका है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं ये सब्जी खरीदने आए क्या कहते हैं। भाईजान आप यहाँ पे सब्जी खरीदने आए, क्या सूरत हाल है? भाईजान सब्जी तो खरीदी है, टमाटर केड़ा बा अगे 50-60 रुपए किलो सी, आज तो 15 दिन पहलों आज 200-250 रुपए किलो हो गया बा। कड़े प्याज और 250-300 रुपए किलो हो गया। सब्जी खरीदिए कि प्याज टमाटर खरीदिए? की मुतालबा कर दे हुकूमत में? भाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ टमाटर मिर्चा लिए कि सब्जी लिए अपने बच्चों वास्ते। जी ये हैं जाके शहरी जो कहते हैं कि सब्जी इस कदर। जाहिद हुसैन हाशमी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब थमा नहीं कि महंगाई का उठने लगा तूफान, सब्जियों के आसमान से बातें करती कीमतों ने कर दिया परेशान। मजीद जानते हैं शेख वसीम से। जी शेख वसीम। महंगाई का बढ़ता तूफान और गरीब आदमी की ज़िंदगी इस वक्त जो है अजीरन होकर रह गई है। बिलखसूस महंगाई के बायस जो तबका मुतासर हुआ है वो गरीब तबका है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। उनके लिए सब्ज़ी ख़रीदना भी मुश्किल हो गया। एक रिक्शा ड्राइवर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बाबा जी दसो महंगाई दे वाले ना सब्ज़ी लेना है की कहोगे रेट दे वाले ना? सब्ज़ी गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। गरीब आदमी एक टाइम की रोटी पूरी नहीं हो सकती, सब्ज़ी तो दरकिनार रह गई। तो जिधर भी जाओ हर चीज़ में इजाफा, महंगाई। प्याज का रेट 200 रुपये फी किलो तक, जो 50 रुपये चलता था। इसी तरह आलू और प्याज टमाटर 200 रुपये किलो चल रहा है, जो पहले 50-60 रुपये किलो था। इसी तरीके से शलगम क्या नाम है बताऊं, कोई खाता नहीं था। अभी सब्जियों में इतनी महंगाई हुई है, किस तरीके से रिक्शा चलाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा क्या, लोग इसी तरह करते हैं, कोई दाल कोई सब्जी की तरफ आते ही नहीं है। सब्जी को दाल शाल ले ली उसके बाद चलो भाई। बिल्कुल जी, ये एक रिक्शा ड्राइवर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनका ये कहना था कि। वसीम शेख, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोहिला वाले में भी महंगाई आसमान को छूने लगी। मजीद जान लेते हैं अली से। जी अली। बिल्कुल, आवाम तो पहले सैलाब में डूब चुकी है और उनको शदीद मुश्किलात का सामना, और रही सही कसर जो है सब्जियों के रेटों में बेपनाह इजाफे से हो गई है। अब जो टमाटर 40
से 60 रुपये किलो था, अब वो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए आलू की तो वो 80 रुपये किलो था, वो भी 250 में चला गया। और प्याज जो था 50-60 रुपये किलो में, उसके रेट भी 250 हो गए हैं। टमाटर और प्याज और उसके बाद जो दीगर सब्जियां हैं वो बेइंतहा महंगी हो गई हैं। लहसुन को देख लें, वो 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद हम जानते हैं, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं कि सर बताइएगा, महंगाई में इतना इजाफा हो गया सब्जियों में, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जब से फ्लड आया ना सर, तूफान आ गया महंगाई का, तो पता नहीं मसनूई में महंगाई इन्होंने कर दिया है। आलू को देख लें, जो 60 रुपये किलो था 80, वो अब 200-250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ तोरी देख लें, कोई चीज़ भी गरीब आवाम के लिए तो बड़ा मसला पैदा हो गया। उधर से फ्लड आया हुआ है, उधर से महंगाई का तूफान ही समझ लें आप इसको। क्या किया जा सकता है? हमारे तो यही हुकूमत से मुतालबात है, इसको मसनूई में महंगाई है, इसे कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम की पहुँच तक, चलो सब्जियाँ तो पहुँचे, वो क्या खाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना, उन्होंने कहा था पहले भी हम। अली शुक्रिया, आपका आप में अपडेट कर रहे थे। बलोचिस्तान की तरह जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की तरह अगर बात करते चलें जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। बात करते चलें तो ज़मीनी रास्ते जो हैं वो भी मुनक़ता जो है वो हुए हैं। इस वक्त हमारे हमरा जो है डिप्टी सेक्रेटरी अली आतिफ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं, हमारे हमरा ही मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप? सैलाब ने नो डाउट एक बड़ी तारीखी तबाही जो है वो मचाई है। राजनपुर की बात करता चलूँ या डेरा गाजी खान की, फोर्ट मंडू, तमाम ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हैं। क्या कहेंगे आप लोगों की जानिब से जो है वो अब तक क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है? बड़ा एक सैडनिंग सा एक एपिसोड चल रहा है। ये बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, डैम्स वगैरह की बड़ी, अभी हमें पता चला है कि हमें कुछ वाटर रिजर्वायर्स और डैम्स की बड़ी ज़रूरत है और कुछ हमें एक पब्लिक अवेयरनेस को भी करने की बड़ी ज़रूरत है कि दरियाई रास्ते, वाटरवेज जो हैं इनको भी आइडेंटिफाई करना होगा, आबादियों को भी डिसलोकेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। फिलहाल तो गवर्नमेंट जो है इस टाइम सारा रेस्क्यू मिशन कर रही है और सारी गवर्नमेंट जो मशीनरी है इसको बड़ी कीनली देख रही है। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, सब लोग जो है फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे हैं। सेक्रेटरीज और जो भी ड्यूटी बाउंड ऑफिसर्स हैं, जितना भी रेस्क्यू का काम है, चाहे वो ये फूड से रिलेटेड है या इंफ्रास्ट्रक्चर से है, आर्मी भी इसमें है बिल्कुल, तो वो सब अपनी जगह बड़ी उसको क्लोजली देख रहे हैं और हम भी इसको चेक कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, और उनके साथ कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं हर तरह से। चलो, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने भी वहाँ का विजिट किया और कमिश्नर जो हैं उनको भी तब्दील किया गया और डैम्स की जांच। वसीम शहजाद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में कमिश्नर आमिर खटीक का निजी तलीमाती अदारों के मालिकान से मुलाकात, सैलाब की इमदाद की अपील, इंतजामिया को गिरा फरोश जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का टास्क दे दिया। नामसाद हालात से फायदा उठाने वाली कौमी मुजरिम हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान कमिश्नर आमिर खटीक का निजी तालीमी इदारों के मालिकान से मुलाकात, सैलाब की इमदाद की अपील। मुल्तान में कमिश्नर आमिर खटीक के मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी से मुंसलिक अफराद से मुलाकात, कमिश्नर आमिर खटीक की सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुनज़्ज़म काविश की अपील। कमिश्नर आमिर खटीक के मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी से मुंसलिक अफराद से मुलाकात, कमिश्नर आमिर खटीक की सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुनज़्ज़म काविश की अपील। मुल्तान N 157 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का N 157 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो भी मुतहरिक जो है इस वक्त दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर शाहिद रजा सदीकी भी अली मूसा गिलानी की जो है वो जो कैंपेन से काफ़ी जो है वो मुतमईन नज़र आते हैं और उनका कहना है कि आवाम उनके हक में फैसला देंगे। सर, शाहिद रजा सदीकी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। हम तो बहुत मुतमईन हैं अपने हल्के में, क्योंकि कैंपेन जारी है और अली मूसा गिलानी साहब की अपनी खिदमात भी हैं कि वो हर खुशी गमी में शामिल होते हैं और हमारे साथ इस वक्त मुल्तान की सब करीम हमारे साथ है। तनवीर गिलानी साहब भी हमारे साथ हैं, यजदानी गिलानी साहब भी, सब गिलानी ख़ानदान पूरा इस कैंपेन में शामिल है और उसके साथ हम लोग भी मुल्तान के जितने
पार्टी के ओहदेदार, टिकट होल्डर सब इस कैंपेन में हैं और हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। और लोग भी ये देख रहे हैं कि एक कराची से लेके आई हुई खातून को उन्होंने इलेक्शन के लिए खड़ा किया है, तो वो खातून को कब ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगी वो। मूसा गिलानी की ये सिफ्त है कि वो हमेशा चाहे हार के भी वो अपने हलके में रहता है और लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है। हाँ जी बिल्कुल, शाहिर रज़ा सदीकी टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका कहना है कि अली मूसा गिलानी हलके। जुनैद अनवर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िला इंतजामिया का जाली और जायदुल मयात बयात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। डीसी की हिदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग अखलाक अहमद की सदारत में ड्रग कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। रहीम यार खान पायलट सेकेंडरी स्कूल में अंडर 16 क्रिकेट ट्रायल्स। आमिर भट्टी से मजीद जान लेते हैं। यार खान के गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम अंडर 16 के इस वक्त ट्रायल जारी हैं और जिली फोकल पर्सन खालिद हुसैन हमारे समझ उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि कितनी टीमें या खिलाड़ियों को आपने सिलेक्ट करना है, किस लेवल का ये जो है अंडर 16 के ट्रायल्स हो रहे हैं और कितना टैलेंट देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एसपीसीए के थ्रू, बल्कि पीसीबी के थ्रू ये एक टूर्नामेंट है जो कि पंजाब को 2-3 रीजन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें जो हमारा रीजन है ये 14 अजला पे मुश्तमिल है, जिसमें बच्चों के ट्रायल्स जो हैं आज लास्ट डे है। और हमारी जो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है इसमें से हमने हर तहसील से 4-4 टीमें जो हैं वो सिलेक्ट करनी है। अंडर 16 ये टूर्नामेंट है। आज लास्ट डे है हमारा रहीम यार खान और खानपुर में ये हो रहे हैं ट्रायल्स वगैरह। इंशाल्लाह कल तक हमारी टीमें जो हैं वो फाइनल हो जाएंगी। ये पहले तो हम विद इन तहसील खेलेंगे, विद इन तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा जो विनर टीम होगी, विनर रनर, वो भावलपुर में इसी तरह जिस तरह 14 अजला के जो एक उन्होंने शेड्यूल देंगे हमें, उसको हमने लेकर चलना है। फिर जो लास्ट इसका जो फाइनल होना है वो इंशाल्लाह कदाफी स्टेडियम में होना है और लाइव जो वो टेलीकास्ट होना है। और इसी में से उन्होंने बच्चे पिक करने हैं अंडर 16, जो आगे चलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए यकीनन अपना नाम पैदा करेंगे। बिल्कुल, हमें बताया जा रहा है कि बच्चों में किस तरह का टैलेंट है। जो आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।